जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। আমরা সব এখানে একত্রিত হয়েছি শ্রী শ্রী নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার জন্য। যারা বহু দূর থেকে এসেছেন তারা অত্যন্তই সৌভাগ্যবান এবং সৌভাগ্যবতী, কেননা আমাদের পূর্বাচার্য শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় তার নিজ রচিত গ্রন্থ শ্রী জৈব ধর্ম গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন, এই পৃথিবীর মধ্যে 7 দ্বীপ আছে। 7 দ্বীপের মধ্যে জম্বুদ্বীপ সর্বশ্রেষ্ঠ। এই জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষ উত্তম, এবং ভারতবর্ষে যে গৌড়মণ্ডল সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং এই গৌড়মণ্ডলে শ্রী মায়াপুর ধাম অত্যন্ত অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ধাম। তিনি নিজে তার স্বরচিত গ্রন্থে এটা আমাদের জন্য তিনি প্রকাশিত করেছিলেন। তিনি বলছেন, মায়াপুরের দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে ঈশোদ্যান নামে বন সুবিস্তার, সর্বত্র ভজন স্থান হোক আমার। শ্রী ভক্তিনাথ ঠাকুর মহাশয় তিনি বলছেন যে পৃথিবীর মধ্যে যে নবদ্বীপ ধাম শ্রেষ্ঠ, মায়াপুর ধাম শ্রেষ্ঠ, সেই মায়াপুর ধামের মধ্যেও এই ঈশোদ্যান যে স্থানে আমাদের পরমারাধ্য পরম গুরুপাদ পদ্মনি তিলক বৈষ্ণব ভক্তি দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ সেই ঈশোদ্যান স্থানের প্রভাবটাকে বিস্তার করেছেন, এবং নিজের গুরু ভ্রাতাগণকে এখানে আমন্ত্রিত করে সবাইকে তিনি বললেন, তোমরা এখানে মঠ করো, ভবিষ্যতে তোমরা এখানে জায়গা পাবেন না, এবং ভবিষ্যতে এত লোক আসবে তিনি তখনই তিনি দর্শন করে সবাই নিজের গুরু ভ্রাতাগণকে নিমন্ত্রণ করে তিনি এখানে নিজে একটা মঠ স্থাপনা করেছেন। ভক্তিনাথ ঠাকুর মহাশয় বলছেন, সেই মায়াপুরের দক্ষিণাংশে যে জাহ্নবীর তটে ঈশোদ্যান, এই বন হচ্ছে সুবিস্তার, সেখানে উনি বলছেন সর্বত্র ভজন স্থান হোক আমার। ভক্তিনাথ ঠাকুর মহাশয় বলছেন সেই ঈশোদ্যানটা আমার ভজন স্থান হোক। সেই আজকে আমরা এখানে ওই ঈশোদ্যান স্থানে আমরা বসে আছি। এটা আমাদের পরমারাধ্য পরম গুরুপাদ পদ্মের বিশেষ অনুকম্পায়। এই জন্য আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার জন্য। আমার দুর্ভাগ্য আমি বলবো
যে আমি নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করতে পারলাম না, আমি সভায় কোনো বসতে পারলাম না, এরকম আমার অসুবিধা হয়ে গেছে এবার। তথাপি আমাদের পূর্বাচার্যগণ, আমাদের গুরুদেব বলতেন, পূজ্যপাদ ভারতী মহারাজ বলতেন, নবদ্বীপ ধামে আসলে একটা সুবিধা আছে। দুজনই বলতেন, যদিও আমাদের শরীর চলার মতো নাই, আমরা বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আমরা চলতে পারি না, হাঁটতে পারি না, পরিক্রমা করতে পারি না, তথাপি একটা সুবিধা আছে, আমরা চেয়ে বাইরে নিয়ে, ঘরের বাইরে নিয়ে ছেড়ে বসি, ভক্তগণ নিজেরা এসে দর্শন দিবে। এত ভক্ত আসে এখানে, আমাকে কোথাও যেতে হবে না। আমাদের পরমার্থ গুরু মহারাজ এইরকম একটা মঠ করে দিয়েছেন, আমাদের গুরুদেব ঈশ্বরদানের বিস্তার এমন করে দিয়েছেন প্রভাবটাকে, সব মঠের লোক এখানে আসবে, আমাদের গুরুদেবকে দর্শন করবে, প্রণাম করবে এবং তাদের দর্শন আমাদের হয়ে যায়। এত আমাদের পরমারাধ্য শ্রী পরম গুরু মহারাজ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আমাদের জন্য, আমাদের কৃপা করে। এবং পরমারাধ্য শ্রী গুরু মহারাজ প্রায় এই কথাটা বলতেন, নবদ্বীপ পরিক্রমার প্রথম দিন অধিবাস দিবসে তিনি বলতেন জগদানন্দ পণ্ডিতের কথা, যে তিনি নবদ্বীপ শতকমেতে লিখেছেন, নবদ্বীপম বন্দে পরম সুখদম তম চিত উদিতম। এই নবদ্বীপ ধামকে আমি বন্দনা করি। কি রকম নবদ্বীপ ধাম? তিনি বলছেন তম চিত উদিতম, আপনার আবির্ভাবটা চিত উদিতম, চিত জড় নয়, চিন্ময়। নবদ্বীপ ধামটা কোনো বঙ্গালের অংশ নয়, ভারতের অংশ নয়, পৃথিবীর অংশ নয়। সপার্ষদ স্বীয় ধাম সহায় অবতারী চৈতন্য মহাপ্রভু অথবা শ্রীকৃষ্ণ যেই লীলা করুক না কেন, যখন এই জগতে আবির্ভূত হন, স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম, নিজের ধাম এবং নিজের পার্শ্বদগণকে এসে এই জগতে আবির্ভূত হন। এই জন্য ওখানে বলছেন তম চিদুদিতম, আপনি আপনার প্রাকট্য চিন্ময় ধাম হইতে হয়েছে, এই জগতের কোন স্থান নয়। মানে আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য, আমরা এখানে আমাদের পরমার্থ পরম গুরুদেব এত বড় বিস্তৃত ভাবে মঠ করেছেন। তিনি কত উদার স্বভাব ছিলেন এবং তার যে দৃষ্টিটা, দূরদৃষ্টিটা এত মানে আকর্ষণীয় যে তিনি আজকে থেকে 100 বছর পরে, 50 বছর পরে, 150 বছর পরে যে এখানে ভক্তগণ আসবে, যে পরিক্রমায় সমবেত হবে, তাদের জন্য কত ব্যবস্থা করে দিতে, তখনই তিনি দর্শন করে আমাদের জন্য করে দিয়েছেন। এই জন্য এমন মহাপুরুষের চরণ চিহ্নে আমরা যদি চলতে পারি, তার অনুগত্যে আমরা থাকতে পারি, তাহলে আমাদের সর্বার্থ সিদ্ধি হবে এবং সর্বমঙ্গল এই জন্যই হয়ে যাবে। এই বলে আমি এখানে বিশ্রাম দিচ্ছি। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम लोग जो नवद्वीप धाम परिक्रमा कर रहे हैं, हम लोग जो यहाँ पर मायापुर में ईश्वरध्यान में बैठे हुए हैं, हम सबके लिए बड़ा सुंदर टॉपिक हमारे परमाद्वैती महाराज जी ने बोला। महाराज जी ने कहा कि हमारे पूर्वाचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म ग्रंथ में वर्णन किया है कि पूरी पृथ्वी, इसमें 7 आइलैंड्स हैं, 7 द्वीप हैं, और 7 द्वीपों में जो जम्बू द्वीप है वो श्रेष्ठ है। जम्बू द्वीप में भी अगर श्रेष्ठता में देखा जाए तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भारत श्रेष्ठ है। क्यों भारत श्रेष्ठ है? और देशों में जाने तो वो बताते हैं, या जिनको संस्कृत पता है ना, भा मतलब प्रकाश, रत मतलब जो उसमें बिजी रहते हैं, यानी कि जो तमसो मा ज्योतिर्गमय, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए
हमेशा व्यस्त रहते हैं, ऐसे ऋषि मुनियों का स्थान है ये भारत है। गुरु महाराज से आपने कई बार सुना होगा कि वो एक नंबर का नास्तिक था और एक नंबर का आस्तिक बना। क्या नाम उसका? क्या नाम? निक्सन पायलट था, बाद में प्रोफेसर बनकर भारत में आया। वो जब बच गया ना, ऊपर से क्रैश कर गया, तो उसका जहाज जब बच गया तो उसको पता लगा कि मेरे सारे साथी मर गए, मैं अकेला बचा हूं। तो वो सोचता मैं अकेला कैसे बच गया? जहाज में आग लग गई और इतनी ऊपर से जहाज नीचे गिर गया, टूट गया, मैं कैसे बचा हूं? कि तो उसको याद आया कि मैंने तब बोला था, इफ एनी गॉड प्लीज सेव मी, अगर कोई भगवान है तो मुझे बचा ले। अरे मैं तो भक्त भी नहीं हूं, मैंने सिर्फ इतना ही बोला, भगवान ने मुझे बचा लिया, बाकी सब मर गए। तब वो भगवान के बारे में जानने के लिए वो चर्च में जाने लगा। तो जितना उनको जवाब पता थे उन्होंने जवाब दिए। जब बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, उन्होंने एक ही बात बोली, इतना अगर भगवान के बारे में जानना चाहते हो तो भारत में जाओ। भारत के ऋषियों ने बहुत खोज करी इस पर। तो भारत जो है वो जम्बू द्वीप में श्रेष्ठ है, और जम्बू द्वीप में भी भारत में भी अगर कोई श्रेष्ठ है तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वो गौड़ मंडल है, नवद्वीप धाम है। और नवद्वीप धाम में भी जहां पर आप बैठे हैं ना, चैतन्य महाप्रभु की बाल्यलीला से मायापुर, और मायापुर में पर्टिकुलरली जहां पर आप बैठे, इसका नाम है ईशोद्यान। ईशोद्यान जानते क्या होता है? ईशा उद्यान, ये दो को संधि करके जोड़कर बना ईशोद्यान। ईशा मतलब राधा रानी, उद्यान माने बगीचा, जो राधा रानी का बगीचा है, हम राधा रानी के बगीचे में बैठे, अभिन्न राधा कुंड है ये। तो हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे राधा कुंड के बैठने का फल ले रहे हैं। राधा कुंड में हम लोग बैठे हुए, ये बात भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखी है। ये ईशोद्यान है या जो मायापुर है, ये कोई बंगाल का, पश्चिम बंगाल का हिस्सा है या इंडिया का कोई हिस्सा नहीं, भारत का हिस्सा नहीं है। ये धाम का अवतरण है। भक्ति विनोद ठाकुर इसके बारे में साफ शब्दों में लिखे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, आगे सपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। जब चैतन्य महाप्रभु यहां पर आए तो ऐसे नहीं आए जैसे कोई ड्रामा होता है ना, तो उनकी अपनी स्टेज होती है, कितनी लंबी कितनी चौड़ी, कैसे पर्दे कैसे लाइटिंग, उनकी अपनी स्टेज होती है। और वो जो ड्रामा में जो कलाकार होते हैं उनके अपने होते हैं। ऐसे ही भगवान ने इस जगत में लीला करनी थी, वो अपनी स्टेज लेकर आए गोलोक धाम से। भगवान जो अपनी लीला करने के लिए, गौरांग महाप्रभु अपनी लीला करने के लिए जिस स्टेज को लेकर आए गोलोक धाम से, उसका नाम है नवद्वीप धाम। ये गोलोक धाम से है। और इस लीला में जो जो पात्र लाए हो, ज्यादातर पात्र जो है गोलोक धाम के हैं। कोई राम लीला के, कोई नरसिंह लीला के, कोई राम लीला के, कोई कृष्ण लीला के, अलग अलग लीलाओं के सारे पात्र यहां पर हैं। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हमने भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो इच्छा थी, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने सुपुत्र या हमारे तेजज्ञान आचार्य या गौड़िया मठ, गौड़िया मिशन के जो फाउंडर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी का था, बिमला प्रसाद, जितना जल्दी हो सके नवद्वीप धाम परिक्रमा का प्रचलन शुरू करो। नवद्वीप धाम परिक्रमा करके जगत वासियों का जितना कल्याण हो सकता है और किसी साधना से नहीं हो सकता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी की इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे प्रभुपाद जी ने ये नवद्वीप धाम परिक्रमा का प्रवर्तन किया। आज हम लोग जो नवद्वीप धाम परिक्रमा कर रहे हैं, चाहे भले हमारे पैर के नीचे फपोले हो गए हो, है ना, या वो टोटो में बैठे बैठे हम थक गए हो, लेकिन हमने जो नवद्वीप धाम परिक्रमा करी ना, इस नवद्वीप धाम परिक्रमा से गुरुजी तो खुश है ही, महाप्रभु तो खुश है ही, प्रभुपाद जी भी बड़े खुश हो रहे होंगे, मैंने शुरू किया है। भक्ति विनोद ठाकुर बड़े खुश हो रहे, मैंने शुरू करवाया है। तो हमारा सौभाग्य है
एक परिक्रमा के द्वारा हमने गुरु जी को, परम गुरु जी को, प्रभुपाद जी को, भक्तिविनोद ठाकुर जी को, श्रीमद नित्यानंद गौरांग महापुरुष सबका आशीर्वाद प्राप्त किया है। मैंने पहले बताया था कि इस वर्ष हमारे आसाम से बहुत ज्यादा भक्त लोग आए हैं। 50 सालों में इतने भक्त एक साथ नहीं आए हैं, तो इस साल आसाम से बहुत ज्यादा भक्त लोग आए हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं हर एक सेशन में असमिया भाषा में कुछ न कुछ बोला जाए। तो प्रार्थना करूंगा पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति प्रचार पर्यटक महाराज से, जो कि लंबे समय से आसाम में है, वो असमिया भाषा में 10 मिनट हरि कथा बोलेंगे। पूज्यपाद पर्यटक महाराज।